Welcome back everyone. Today I am back with another video on a short part of Mahatma Gandhi's autobiography, My Experiment with Truth. Before starting, I would like to tell you something about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi's full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. He was India's most important political and spiritual leader. He is honored in India as Father of the Nation. His non-violent protest led to independence for India from the British. Gandhiji was a prolific writer. He edited several newspapers. Gandhiji also wrote several books, including his autobiography, My Experiment with Truth. He died on 30th January 1948 in New Delhi. His book, My Experiment with Truth, his autobiography, was originally written in Gujarati, but its several translations are also available. So now let's start the chapter. I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of Rajasthan Court. मैं लगभग 7 साल का रहा हूँगा जब मेरे पिताजी ने राजकोट से राजस्थान कोर्ट का सदस्य बनने के लिए पोरबंदर छोड़ा था. There, I was put into a primary school and I can recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me. वहाँ मुझे एक प्राथमिक विद्यालय में रखा गया था और मैं उन दिनों को याद कर सकता हूँ जिनमें मेरे अध्यापकों के नाम और उनके अन्य विवरण शामिल है. I could only have been a mediocre student. मैं एक औसत दर्जे का छात्र रहा हूँगा. I had already reached my 12th year. मैंने अपना 12वां वर्ष पूरा कर लिया था. I do not remember having ever told a lie either to teachers or to my schoolmates. मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी झूठ बोला हो या तो शिक्षकों से या अपने स्कूल के साथियों से. I used to be very shy and avoid all company. मैं बहुत शर्मीला हुआ करता था और हर प्रकार की संगतों से दूर रहा करता था. My books and my lessons were my sole companions. मेरी किताबें और पाठ ही मेरे एकमात्र साथी थे. To be at the school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit. घंटी के बजते ही स्कूल जाना और स्कूल के बंद होते ही वापस घर आना, यह मेरे रोज की आदत थी. I ran back home because I could not bear to talk to anybody. मैं छुट्टी होते ही घर की ओर वापस भाग जाता था क्योंकि मैं किसी से बात करना सहन नहीं कर पाता था. I was even afraid lest anyone should poke fun at me. मुझे यह भी डर था कि ऐसा ना हो कि कोई मेरा मजाक उड़ाए. There was an incident which occurred in the examination, my first year at the high school and which is worth recording. परीक्षा में एक घटना घटी थी जब हाई स्कूल में मेरा पहला साल था जो अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग के लायक था. मिस्टर गाइलेस द एजुकेशनल इंस्पेक्टर हैड कम ऑन अ विजिट फॉर इंस्पेक्शन. मिस्टर गाइलेस शैक्षिक निरीक्षक निरीक्षण के लिए हमारे स्कूल आए हुए थे. ही हैड गिवन अस 5 words टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज. उन्होंने हमें 5 शब्द शुद्धलेख के लिए दिए थे, शुद्धलेख में लिखने के लिए. वन ऑफ द वर्ड्स वॉज कैटल. उनमें से एक शब्द कैटल था. आई हैड मिस स्पेल्ड इट, जो कि मैंने गलत लिखा था. द टीचर्स ट्राइड टू प्रोमोट विद द पॉइंट ऑफ हिज बूट बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड. हमारे अध्यापक ने मुझे अपने बूट की ओर इशारा करके सही करने के लिए प्रेरित किया उत्तर को, लेकिन मैं प्रेरित नहीं हुआ. It was beyond me to see that he wanted me to copying the spelling from my neighbor's slate, for I had thought that the teachers was there to supervise against copying. यह मेरी सोच से परे था कि वह चाहते थे कि मैं अपने बगल में बैठे बच्चे की स्लेट में से शब्द नकल करके लिखूं, और मैंने सोचा था कि अध्यापक नकल करके लिखने के खिलाफ देखरेख करने के लिए वहां है. The result was that all the boys except me were found to have spelled every word correctly. इसका नतीजा यह निकला कि मेरे अलावा सभी बच्चों के 5 शब्द सही निकले. Only I had been stupid. केवल मैं ही बेवकूफ था. The teacher tried later to explain this stupidity to me, but without effect. I never could learn the art of copy. हमारे शिक्षक ने मुझे बाद में इस मूर्खता को समझाने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी प्रभाव के मैं कभी नकल करने की कला नहीं सीख सका. There was an incident connected with a play. एक नाटक से जुड़ी एक घटना थी. I had secured my father's permission to see a play performed by a certain drama company. एक निश्चित कंपनी के द्वारा किए गए नाटक को देखने के लिए मेरे पिताजी की अनुमति मुझे प्राप्त थी. This play, हरिश्चंद्र captured my heart. इस नाटक हरिश्चंद्र ने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया था.
I could never been tired of seeing it. मैं इसे देखकर कभी भी थकता नहीं था. But I was not allowed to go to watch it more often. लेकिन मुझे इसे अधिक बार जाकर देखने की अनुमति नहीं मिली. It haunted me and I must have acted Harish Chandra many times without counting. Why should not all be truthful like Harish Chandra? Was the question I asked myself day and night. To follow the truth and to go through all the ordeals Harish Chandra went through was the one ideal that inspired me. सभी को हरीश चंद्र की तरह सच्चा क्यों नहीं होना चाहिए? इस सवाल ने मुझे परेशान किया और मैं खुद को हरीश चंद्र की तरह अभिनय करके खुद से दिन रात यही सवाल पूछता था. सत्य का पालन करने के लिए और परीक्षाओं के माध्यम से जाने के लिए हरिश्चंद्र जिस तरह गुजरे थे वह एक आदर्श था जिसने मुझे प्रेरित किया. आई बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र. मुझे हरिश्चंद्र की कहानी पर भरोसा था. द थॉट ऑफ इट ऑफन मेड मी वीप. इसके बारे में सोचकर मुझे अक्सर रोना आता था. माई कॉमन सेंस टेल्स मी टुडे दैट हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर. मेरा सामान्य ज्ञान आज मुझे बताता है कि हरिश्चंद्र एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं हो सकता. स्टिल ही इज लिविंग रियलिटी फॉर मी एंड आई एम श्योर आई वुड बिकम सेंटिमेंटल एज बिफोर इफ आई वर टू सी दैट प्ले अगेन टुडे. फिर भी वह हमारे लिए एक जीवित वास्तविकता है और मुझे यकीन है कि मैं फिर से भावुक हो जाऊंगा पहले की तरह अगर मैं उस खेल को आज फिर से देख पाता.